Hello everyone, welcome back to today's lecture. Today we are going to finish this chapter. This is the last sum of this chapter. So I want you all to pause for a second and have a screenshot of it so that you can easily get the question while doing the solution. Now let's start the sum. So transaction number 1. Okay, before heading to transaction number 1, we need to read the questions very carefully. So the question is, show an accounting equation on the basis of following transactions. So here the question is asking us to present the accounting equation. Accounting equation, you all know that asset is equal to liabilities plus capital. So we need to prepare that accounting equation, and we need to verify whether the left hand and the right hand are getting equal or not. So transaction number 1, Sunil started a business with cash 1,50,000. So transaction number 1 will be Sunil started the business with cash. So cash is my asset. Cash comes in, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, and on the very same time this cash is my capital. So here that will be 1,50,000. So 150 and 150, this is equal. Transaction number 2. Open a bank account by depositing 25,000 out of cash. Transaction number 2. Open a bank account by depositing 25,000 out of cash. हमने एक बैंक अकाउंट खुलवाया है, अपने कैश में से 25,000 को विड्रॉ किया है और एक बैंक अकाउंट खुलवाया है. So first of all, opened a bank account out of cash. So cash से बैंक अकाउंट खुलवाया है, that means 25,000 से मेरा कैश बैलेंस कम हो गया है, बट ऑन द वेरी सेम टाइम मेरा एक बैंक बैलेंस जो मेरा एसेट ही कहलाएगा उसको यहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ. सो एक एसेट कम हुआ, उसके अगेंस्ट में एक एसेट बढ़ गया. सो दिस 25,000 minus this 25,000 is plus, so the final outcome will be 0. Now if I want to verify this, I can that is 1,25,000. This is my remaining cash balance. This is my bank balance. Nothing और कोई एंट्री है ही नहीं, and nothing over here. So that is 1,50,000 is equal to 1,50,000. Transaction number 3. Transaction number 3. He sold his personal car for 50,000 and deposited the amount in the firm's bank account. Very good. Owner has sold his personal car. पर्सनल कार लिखा है यहाँ पे, बिजनेस की कार नहीं लिखा है.
owner has sold his personal car for 50,000 rupees और उस कार को बेचने से जो भी रुपए आए हैं उसे कंपनी के बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है. सो आई कैन से दैट दिस इज माय additional capital introduce. Are you getting my point? If owner is investing anything in the business it is called capital. तो यहाँ पे भी कार बेच के जो भी एडिशनल पैसा यहाँ पे डिपॉजिट किया है कंपनी के अंदर वो कैपिटल ही कहलाएगा. सो द एंट्री विल बी sold his personal car and invested in business. So if we can measure it in accounting equation, the effect will be, यहाँ पे तो कुछ नहीं है as it is ही है, but sold his personal car and invested the amount in firm's business. तो यहाँ पे जो 50,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं फर्म्स बिजनेस फर्म्स बैंक अकाउंट तो यहाँ पे वो 50,000 आ चुके हैं. एट द वेरी सेम टाइम इस 50,000 से मेरा कैपिटल बढ़ गया होगा तो माई कैपिटल विल बी शोइंग एन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज़. तो यहाँ पे भी जो फ्लक्चुएशन आया है 50,000 का वही एग्जैक्टली यहाँ पे भी आया है. प्लस 50,000 इज इक्वल टू प्लस 50,000. द आउटकम विल बी 125,000 plus 75,000 is equal to 2 lakhs. Transaction number 4. He purchased a building and furniture for 1 lakh rupees. ओके तो इस ट्रांजेक्शन में बताया है कि सुनील ने बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख रुपए का परचेज किया है बट देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन वेदर ही हैज़ परचेज द बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर कैश और ऑन क्रेडिट. नथिंग हैज़ बीन मेंशन ओवर हियर. सो what we will be going to do is when no information is given, I have told you in the previous lecture that when there is no information available whether to consider this is a cash or on credit, so as per the rule हमको यही मानना है कि ये जो फर्नीचर परचेज किया है वो कैश से ही परचेज किया होगा. सो हम यहाँ पे अपना कैश बैलेंस उतने से कम कर देंगे. मोर ओवर वी परचेज्ड फर्नीचर एंड बिल्डिंग. सो फर्नीचर एंड बिल्डिंग इज माय एसेट. तो एक एसेट जो मेरा कैश जो कम हुआ है उसके अगेंस्ट में एक दूसरा एसेट जो मेरा फर्नीचर एंड बिल्डिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो -1 lakh plus 1 lakh is equal to 0 and 0 is equal to 0. So this now the remaining cash balance on hand is only 25,000 plus 75,000 is my bank balance plus 1 lakh is my new asset is equal to 2 lakhs. 1 plus 75 plus 25 is equal to 2 is equal to 2 lakhs. Transaction number 5. Purchased goods
फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, हमने राम के पास से कुछ गुड्स उधार में लिया है, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स उधार में लिया है, क्लियरली कह ही दिया है कि गुड्स को उधार में लिया है. सो व्हाट विल बी डूइंग, स्टॉक जो है वो मेरा 50,000 रुपीज़ से यहाँ पे अभी शो करेगा, क्योंकि मैंने इसे परचेज किया है. गुड्स है तो मेरा एसेट है, तो मेरा एसेट 50,000 से बढ़ गया. बट ऑन द अदर हैंड मैंने इसे उधार पे लिया है, सो मेरा यहाँ पे एक जिम्मेदारी यानी एक क्रेडिटर बढ़ जाएगा फॉर द अमाउंट 50,000. So 50,000 is equal to 50,000. Accounting equation is tallied. Now I'm running low on space, so I'm not going to verify this after each and every transactions. We will do it orally. You students have to do it. This equation you need to maintain every time. Because I'm running low on space, I cannot calculate it, so I'm going without it. Number 6. He paid cartage of rupees 500. राम पेड कार्टेज ऑफ 500. कार्टेज यानी जो गुड्स लाए होंगे उसको लाने के लिए कुछ ना कुछ व्हीकल्स में लाए होंगे, या तो फिर वो ट्रक होगा, टेम्पो होगा, कुछ भी होगा, तो उसके लिए जो भी कुछ पेमेंट दिया है वो 500 रुपये का पेमेंट किया है उसे, उस गुड्स को अपने यहाँ पे मंगवाने के लिए. कार्टेज का मतलब होता है गुड्स को गोडाउन से अपने गोडाउन पे लाने का जो खर्चा होता है वो. सो ही पेड यानी उसने पे कर दिया है. कैश से किया है या बैंक से किया है, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, सो वी विल बी कंसिडरिंग इट एज द कैश पेमेंट. तो it is a cash expense, and although it's an expense, so we will be deducting it from capital. So paid cartage, so यहाँ पे आ जाएगा -500 is equal to -500. यहाँ से भी कम करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ माई एक्सपेंस. तो एक्सपेंस हुआ तो मेरा कैपिटल 500 रुपये से कम हो जाएगा. अगर प्रॉफिट हुआ होता तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा देते. Number 7. He sold to Shyam on credit goods costing 6,000 for 9,000. Sold goods to Shyam. 6,000 की कॉस्टिंग के गुड्स सुनील ने शाम को पे किए हैं 9,000 रुपीज़ में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, तो ये एक उधार ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी इसका पेमेंट हमको मिला नहीं है लेकिन अपना गुड्स तो कम हो चुका है. सेकंड, यहाँ पे 6,000 के कॉस्टिंग का गुड्स 9,000 में बेचा है, यानी जो गुड्स हमको 6,000 में पड़ा था उसे हमने 3,000 प्रॉफिट चला के 9,000 में बेचा है. तो यहाँ पे वो 3,000 प्रॉफिट भी कंसिडर करना पड़ेगा. तो फर्स्ट
sold goods to Shyam. So number one, first of all I need to deduct 6,000 of the cost of goods from here. यहाँ से मैंने 6,000 का गुड्स कम कर दिया है. सेकंड, इसका पेमेंट मुझे मिला नहीं है, यानी ये मैंने उधार में सेलिंग किया था. सो आई हैवंट रिसीव्ड एनी पेमेंट टुवर्ड्स इट. सो ये मेरे बिजनेस का एक डेटर्स होगा. उधार पे अगर मैंने गुड्स सोल्ड किया तो इट विल बी द डेटर. सो मुझे यहाँ पे एक डेटर क्रिएट करना पड़ेगा. कितने में बेचा था उसे? सो 9,000 का गुड्स था. Now 6 and 9, that is the difference of 3. So this 3,000 is my profit. ये यहाँ पे add हो जाएगा. You people have to take out the accounting equation and verify over here, right? So 6 minus 6 plus 9, that is 3. 3 plus 3 is equal to 3, that is equalized now. Number 8. Received rent from tenants 1,000 rupees. हमको टेनेंट से 1,000 रुपये का रेंट मिला है. टेनेंट मीन्स हमने किसी को कोई गोडाउन या फिर कोई शॉप भाड़े पे दी थी, तो उस जिसको हमने भाड़े पे दिया था उसे हम टेनेंट्स बोलते हैं. तो उस टेनेंट्स ने, उस भाड़ूत ने हमें 1,000 रुपीज़ रेंट दिया है. सो उससे मेरा कैश बढ़ गया और ये मेरी इनकम है तो मेरा कैपिटल भी बढ़ा होगा. सो रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट्स कितना? 1,000 रुपीज़. एंड बिकॉज ऑफ इट 1,000 रुपीज़ से मेरा कैपिटल भी बढ़ा हुआ है बिकॉज इट इज़ माई इनकम. नंबर 9. Receive security deposit from tenants, that is 1,500 rupees. हमको टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है 1,500 रुपये का. सो रिमेंबर गाइस, बिफोर रेंटिंग आउट एनी प्रीमाइसेस टू एनीवन, द tenant is required to pay at least 1 or 2 months of rent as per the rule in advance. टेनेंट जो है हमको एक एडवांस में कुछ डिपॉजिट देता है कि इन केस अगर फ्यूचर में वो पे ना कर सके तो हम वो डिपॉजिट को अपने पास जो जमा है उसमें से उतने टाइम का रेंट कट करके बाकी का पैसा उसको पे कर सकते हैं. उसे बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट. सिक्योरिटी डिपॉजिट इज़ नॉट अवर्स, इट इज़ अ लायबिलिटी, इट इज़ नॉट एन एसेट. रिमेंबर दैट. जब भी ये टेनेंट पेमेंट करके अपना मकान या अपनी शॉप खाली करके जाएंगे तो वी आर रिक्वायर्ड टू पे हिम दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट. सो इट इज़ अ बर्डन ऑन अस. सो सिक्योरिटी डिपॉजिट received, even though it is received in cash, तो कैश बैलेंस इससे मेरा बढ़ा तो होगा ही, देयर इज नो डाउट इन इट. yet it is my liability. सो ये मैं 1,500 रुपये मेरी लायबिलिटी के कॉलम में बताऊंगा और एक नया हेड क्रिएट करूंगा
security deposit, because I am required to pay him this money whenever he asked or whenever he is vacating my premise. Number 10, purchase stationery for cash. Stationery purchased, क्लियरली कह ही दिया है कि कैश से परचेज किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ किया है, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि बिज़नेस के लिए है या पर्सनल के लिए है, सो वी विल बी कंसिडरिंग इट एज अ बिज़नेस एक्सपेंस। तो इस एक्सपेंस से मेरा यहाँ पे 100 रुपये बिज़नेस में कम हो जाएगा। So stationery purchased on cash, that is 100. Getting it? ओके, तो मैंने फिर से यहाँ पे कुछ स्पेस को मैनेज करते हुए यहाँ पे अपना अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से लिख लिया है, बिकॉज मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। नाउ नंबर कौन सा नंबर है, नंबर 9, नो नंबर 11, हाँ सही है, नंबर 11, इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल इन्वेस्टमेंट किया है शेयर के अंदर 50,000 रुपीज़ का। रिमेंबर यहाँ पे लिखा है पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो हमको भी वही तरह से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पर्सनल है, इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 का, यानी हमने किसी कंपनी के अंदर 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्ट किया है, यानी उतने रुपए हमने अपनी कंपनी में से निकाल के किसी और कंपनी में डाले हैं। सो यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है कि वेदर दिस इज़ इन कैश और दिस इज़ इन बैंक, so we are not having any kind of information over here. So that means first of all we will consider it as a cash transactions, but in the business we are having only 26,900 with us on hand. That means ये 50,000 हमने अपने बैंक अकाउंट में से लिए हो गए, समझे। अगर कैश ट्रांजैक्शन या बैंक के बारे में कुछ नहीं कहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उसको कैश के अंदर ही ट्रांसफ़र करना है कि वहीं से ही हम उसको ट्रांजैक्शन करेंगे। लेकिन अगर वी आर नॉट हैविंग दैट सफिशिएंट फंड्स विथ अस, तो हमको नेक्स्ट अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, दैट इज़ अवर बैंक बैलेंस। सो क्या बैंक में 50,000 था अवेलेबल? सो यस, वहाँ पे था, तो हमने ये 50,000 वहाँ से पे किए हैं। इसको इस तरह से ट्रीटमेंट देना है, आधा मैं यहाँ से निकालूँ आधा यहाँ से निकालूँ, इस तरह से नहीं करना है। नेवर डू लाइक दिस। सो नो 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 नो। यहाँ अभी ये था पर्सनल। सो जब कभी भी कुछ भी पर्सनल ओनर अपने लिए करे तो वो कहलाएगा ड्राइंग। ड्राइंग करने से मेरा कैपिटल हो जाएगा उतने रुपीस से कम। ओके, नंबर 12, received interest in cash, that is 200 रुपीज़। हमको इंटरेस्ट मिला है कैश के अंदर 200 रुपये का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरा कैश है, तो मेरा एसेट बढ़ जाएगा।
by 200 rupees. Second, this is my income. तो उससे मेरी कैपिटल भी इंक्रीज होगी. इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश. सो मेरा कैश बैलेंस बढ़ा 200 रुपये से. मेरा एसेट बढ़ा. नाउ on the other hand, this is my income. तो इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है. सम नंबर 13. अरे ट्रांजैक्शन नंबर 13. Introduced fresh capital of 25,000 rupees. हमने फॉर्म के अंदर फ्रेश कैपिटल को इंट्रोड्यूस्ड किया है. दैट इज कि मैंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया. तो क्या लिखे यहाँ पे? फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. कितना? 25,000 रुपीज़. 25,000 से मेरा कैश बैलेंस बढ़ा. एंड एज यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो कैपिटल ही बढ़ने वाला है. गेटिंग? लास्ट ट्रांजैक्शन. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. 500 रुपये के कुछ गुड्स थे जो फायर में जो जल के ख़राब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. तो मेरे पास 44,000 रुपीज़ के गुड्स थे जो बचे हुए थे. ये रहा. उसमें से 500 रुपये का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया जल के. तो अभी मेरे पास 500 रुपये से मेरा गुड्स कम हो गया होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल goods destroyed goods destroyed by fire. गुड्स जले हैं, कैश थोड़ी जला है. मैंने गलती से कैश को जला दिया. इफेक्ट तो सही हो जाता, उसमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक कोई आइटम का टोटल गलत हो जाता. तो यहाँ पे मेरा गुड्स 500 रुपये से जल गया. तो मेरे पास कितना बचा? 43,500 का गुड्स. ये 500 रुपये मेरा नुकसान भी है. आर यू गेटिंग इट? तो मैंने ये 500 रुपये यहाँ से लेस कर दिए हैं. द अकाउंटिंग इक्वेशन is done. Now I just need to make the total of it. Wait while I do the total. So this is our total. हमने ये टोटल कर लिया है. You can also verify this. Now बहुत बार क्वेश्चन अपने को ऐसा पूछेगा कि टोटल एसेट कितना था, लायबिलिटीज़ कितनी आई और कैपिटल कितना आया था. तो उस टाइम पे हमको एसेट के सारे हेड्स का टोटल करके यहाँ पे लिखना है. फिर लायबिलिटीज़ का टोटल करके उसके बाजू में लिखना है. और कैपिटल का टोटल करके उसके बिसाइड लिख देना है. बाद में जस्ट लाइक द अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. इन तीनों को वेरीफाई करना है कि अपना वो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं है. सो वी आर हैविंग द आंसर विद अस. लेट्स चेक इट कि अपना आंसर 229,600 आ रहा है. सो यस, 229,600, 51,500 and 178. So our accounting equation is matched. It is accurate, no doubt in it.